Hello, good afternoon, dear students. Today we are going to study with the common human diseases from the chapter Human Health and Diseases. Okay, last lecture में we have studied up to the RH factor. We have studied about the blood group and we have also studied about the RH factor. Today we are going to study with the common human diseases. Common means the diseases which are common, means जो सबको हो जाते हैं. See, all the human diseases, whether it is common cold, cough, sore throat, malaria, typhoid, HIV, cancer, whatever, they are broadly categorized into the two group. They are broadly categorized into the two group, and the first group is a congenital disease and second group is a acquired disease. What is acquired and what is congenital disease? You know what? First of all, congenital का मतलब होता है which are present from birth, and acquired का meaning होता है which develop after the birth, which you are acquiring from the environment, from the surrounding. And congenital का मतलब होता है which is permanent, which is genetical disease or metabolic disorder. Okay, now so congenital diseases जो होते हैं they are incurable, or sometime they can be little bit curable, little bit we can cure them. Okay, we can use for them gene therapy, enzyme replacement therapy and all. And acquired disease जो होते हैं that occurs because of the pathogens like bacteria, protozoa, parasite, roundworm, nematode, helminthes, mollusca, इन सब की वजह से हमको होता है. एक्वायर्ड डिसीजेज जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल का मतलब होता है which can be transmitted from one infected person to another healthy person, that is communicable, एक से दूसरे में communicate होना. Non communicable which cannot be transmitted from one infected person to another healthy person. For example, cancer, if one person is suffering from cancer in your family, another person will not get the cancer disease, means cancer is non communicable disease. What about the communicable disease like malaria, common cold, this recently COVID-19, corona, this is a communicable disease, spreadable disease or infectious disease. ठीक है ना. हम लोग देखते हैं कि जो communicable diseases होते हैं generally they caused by the pathogens like viruses, bacteria, fungi and helminthes. Many pathogens they use another organism with the help of the vector का मतलब होता है vehicle. They can transmit the disease from one person to the another person. ओके नाउ इसके बाद आता है लाइक पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स इन द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी. लाइक पहले की मूवीज़ हम लोग देखते थे कि अगर किसी भूत को, किसी घोस्ट को अपना रिवेंज लेना होता था तो पर्टिकुलर किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता था और वहाँ से वो अपना रिवेंज ले लेता था दूसरों से. तो जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर लाइक अ घोस्ट. दे रिक्वायर्स अदर्स बॉडी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पस. ठीक है. Now the parasites are categorized into two groups, ectoparasites and endoparasites. Ecto means outside, endo means inside. The parasite those who goes inside and harm the body, endoparasite. The parasite those who don't never go inside the body, from the outside only they infect the body or they harm the body, they are ectoparasite. Second one is what? Malaria. What is the malaria? Now we are going to study with the first disease, that is what? Malaria. What is malaria? Malaria is a very common disease. It occurs by the Protista plasmodium. नाउ दिस प्लाज्मोडियम आर ऑफ 4 टाइप. ये प्रोटिस्टा प्रोटोजोआन होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. 4 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम. इसमें सबसे फैटल होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम. ठीक है.
What are the signs and symptoms of malaria? You know very well, fever, headache. Okay, 7 to 15 days का इनका लाइफ साइकिल होता है. It is a mosquito borne disease. It can be transmitted from the female Anopheles mosquito. इसमें साइक्लिक हाई फीवर आता है, स्वेटिंग होता है, सडन शिवरिंग होती है, अचानक से कांपने लगते हैं, वॉमिटिंग होती है, कन्वल्शन खांसी आती है, आर्थ्रालजिया जॉइंट पेन होता है, आरबीसी रप्चर होते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लीवर का साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि लीवर के अंदर ही आरबीसी रप्चर ज़्यादा होते हैं, रेटिनाल डैमेज आँखों के रेटिना का डैमेज होता है, सेरेब्रल मलेरिया कभी कभी ये दिमाग में घुस जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेरेब्रल मलेरिया. देखो इसमें चारों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सीफेरम ओवल और मलेरिया दिए गए हैं. सबका इंक्यूबेशन पीरियड है. वाइवेक्स का 14 डेज़, मलेरिया का 28 डेज़, ओवल का 17 डेज़, फैल्सीफेरम का 12 डेज़. और वाइवेक्स में हाई फीवर आता है 48 आवर्स के बाद, मलेरिया में हाई फीवर आता है 72 आवर्स के बाद, ओवल में भी 48 आवर्स के बाद, और फैल्सीफेरम में 22 टू 48 आवर्स के बाद. ठीक है. नाउ दिस इज़ अ साइकिल इन मॉस्किटो. मलेरिया का जो साइकिल होता है दैट कंप्लीटेड इनटू दी 2 stages. One stage occurs in the human, one stage occur in the mosquito. Suppose I am having a malaria, मेरे को मलेरिया हुआ है. ठीक है, मेरे को मलेरिया हुआ है, मेरे को क्या किया, मॉस्किटो ने कट किया, ह्यूमन की स्किन है, मेरे को मॉस्किटो ने कट किया. नाउ जो मलेरिया के पैरासाइट है, मलेरिया के जो पैरासाइट हैं, नाउ दे विल एंटर इनटू दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मलेरिया. यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखिए, मलेरिया ये मॉस्किटो ने मेरे को कट किया, मॉस्किटो के बॉडी में जाते हैं गैमेटोसाइट. आई विल टेल यू व्हाट आर दी गैमेटोसाइट मॉस्किटो के बॉडी में गए, दे विल कन्वर्टेड इनटू द माइक्रोगैमेट में कन्वर्ट होने के बाद दे विल टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मॉस्किटो. फर्स्ट दे विल व्हेन द मॉस्किटो bites us, first this gametocyte enters into the salivary gland of the mosquito. This is the portion of the salivary gland where salivary gland of the mosquito microgamete converted into macrogamete, and macrogametes, दो gamete, male के gamete, female के gamete fuse together to form what, zygote तक की formation होती है. Now these gametes enter into the midgut, or you can say that the intestine of the mosquito. मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाता है. जब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाता है तो ये कन्वर्ट होता है ऊकाइनेट एंड ऊसिस्ट में. ऊसिस्ट जहाँ पे सिस्ट बन जाता है, स्वेलिंग आ जाती है. और जब ये जायगोट अंदर जाते हैं, अंदर इनकी ग्रोथ होती है, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये सिस्ट वहाँ पे गोल गोल फूक जाता है, और वो सिस्ट फट के इसमें से छोटे छोटे निकलते हैं. ये आप देख रहे हैं बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स, छोटे छोटे स्पोरोजॉइट्स निकलते हैं. ठीक है, ये वापस कहाँ आएंगे, दे अगेन कम बैक टू दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो. सलाइवरी ग्लैंड से जाके इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर आते हैं सलाइवरी ग्लैंड में. When this mosquito bites to a healthy person, अब इस मॉस्किटो ने काटा, ये यहाँ पे कौन है, हेल्दी पर्सन. ठीक है, हेल्दी पर्सन. ये हेल्दी पर्सन के बॉडी में ये कौन गए, स्पोरोजॉइट्स गए. स्पोरोजॉइट डायरेक्टली हेल्दी पर्सन को काटा, ब्लड के थ्रू दे विल गो टू द लीवर. हेपेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीवर के सेल्स में गए. लीवर के सेल्स में जाने के बाद जब लीवर के सेल के अंदर एंट्री किए तो उनको बोलेंगे हैप्नोजॉइट के बाद दे विल अगेन बिकम लिटिल बिट मैच्योर, एंड दे कॉल्ड एज मैच्योर शिजोंट और मेरोजॉइट. ठीक है. नाउ अब ये जो मेरोजॉइट्स होंगे, नाउ दे लीवर के अंदर आरबीसी बनता है, दे एंटर इनटू द एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है अपना आरबीसी. और आरबीसी के अंदर जब ये एंटर करेंगे तो इनको बोलेंगे ट्रोफोजॉइट. और आरबीसी के अंदर ये साइज़ इनकी बढ़ने लगेगी, और एक टाइम आएगा कि वो आरबीसी को रप्चर करके बहुत सारे आरबीसी को रप्चर करेंगे एरिथ्रोसाइट को, तो उसमें से बहुत सारे एरिथ्रोसाइट्स निकलेंगे जो कि कैसे रहेंगे, इन्फेक्टेड रहेंगे. और एवरी एरिथ्रोसाइट
gametosite, every RBC contain gametosite. Or when another mosquito comes and bite to this infected person, so again this gametosite enter into the mosquito body. So you can see here the whole cycle occurs. One cycle occurs in the mosquito body and one occur in the human body. The mosquito is a female anopheles mosquito. वाई ओनली फीमेल, वाई नॉट मेल? ठीक है, तो औरतें सिर्फ खून चूसती हैं, ये है क्या? नहीं। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, उनको आपको पता, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो को ह्यूमन की जो बॉडी दिखती है वो रेड ब्लड दिखती है। उनके आइज़ के रेटिना में ऐसा रहता है, ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे उनको ह्यूमन की बॉडी रेड कलर की दिखती है। और उसके बाद मेल एनाफिलस मॉस्किटो जो होते हैं दे यूज़ प्लांट सैप, वो प्लांट का लिक्विड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ प्लांट सैप। ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट दी साइकिल हो गया। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आपने ये देखा, यही साइकिल थी। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो यहाँ पे स्मीयर लेते हैं, स्लाइड के ऊपर ब्लड का स्लाइड रहती है, ब्लड ड्रॉप डालते हैं, ब्लड का ऐसे स्मीयर लेते हैं दूसरे स्लाइड से, इसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं हम लोग। हम लोगों को ऐसा जैसे कि ऐसा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऐसा दिखता है, फैल्सीफेरम ऐसा दिखता है, रिंग शेप में ज़्यादातर दिखते हैं। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है माइक्रोस्कोप में हम लोगों को मलेरिया के पैरासाइट आरबीसी के अंदर। व्हाट इज़ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल? तो वी कैन यूज़ मॉस्किटो नेट, insect repellent, odomos. Okay, we should spray the insecticide in draining stagnant water where mosquito lay. We should not let the water पानी एक जगह पे बहुत ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए। मॉस्किटो लार्वा कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग गम्बशिया फिश, वाटर फिश। एक छोटी छोटी मछली आती है, स्मॉल फिश होती है गम्बशिया फिश, जो कि हम लोग पानी में डालेंगे तो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। The second disease is amoebiasis. Amoebiasis is what? It occur through the amoeba. It affect 15% population of India every year. It is also called as the amoebic dysentery. इसको हम लोग dysentery बोलते हैं। ओके, dysentery means लूज मोशन। ये भी होती है हमको एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका। इसके जो प्रोटोजोआ का नाम है, पैरासाइट का नाम है एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका। नाउ इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? डायरिया, लूज मोशन, फ्लैटुलेंस, स्टूल विथ म्यूकस। स्टूल वाटरी स्टूल होगा और साथ में चिपचिपा स्टूल होगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा। पासिंग ऑफ ब्लड विद द स्टूल के साथ ब्लड भी आएगा। हिमेटोमेगाली इफ़ पैरासाइट एंटर द लीवर, अगर पैरासाइट लीवर में एंटर करेगा तो होगा हिमेटोमेगाली, मतलब लीवर के अंदर पेन होगा, फीवर होगा और राइट साइड के एब्डोमेन में आपको दाहिने तरफ बहुत पेन होगा। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीको ओरल रूट, मुंह से, या फीको ओरल रूट मतलब फीकल मैटर जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर इसके पैरासाइट मिलते हैं, और वो अगर मुंह से चला जाए अंदर, लाइक ड्यू टू ईटिंग डर्टी हैंड्स और ड्यू टू ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसके थ्रू इसके जो सिस्ट होते हैं दे कैन एंटर इन द बॉडी। व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ऑब्वियसली लूज मोशन हो रहा है तो डॉक्टर को पता चलेगा। इट कैन बी ट्रीटेड बाय दी metronidazole and tinidazole. These are the medicines, or these are the what you can say that ki these are the medicines. We should wash our hands with hot water. What is the prevention and control? We should wash our hands with hot water and soap after using toilet and changing baby's diaper. We should drink boiled water if we are suffering from this. Water must be chlorinated and filtered होना चाहिए. We should avoid eating unhygienic food. Vegetable must be properly washed and cooked. Proper sanitary facility including sewage disposal help in prevention. ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहला
सबसे पहला सपोज़ ये जो सिस्ट होता है दैट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, ये यहाँ से ये प्री सिस्टिक फॉर्म से पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। ये सिस्ट जो होता है यहाँ से दैट कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटॉइड बॉडी, मतलब अंदर थोड़ा चेंजेस होते हैं। बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, यहाँ पे 1-2 ऐसे न्यूक्लियस फॉर्मेशन होती है। फिर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट 1 2 3 4 4 न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद सिस्ट का वॉल रहता है, एक सिस्टमेंट रहता है। फिर ये आगे जाके मेटासिस्टिक अमीबा, थोड़ा बड़ा अमीबा में कन्वर्ट होता है। अमीबा में डिवीजन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारे, ये वो अमीबा नहीं है जो हम लोग देखते हैं, ये एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका इज़ द नेबर ऑफ अमीबा, अमीबा की तरह ही दिखता है पर ये डिफरेंट टाइप का अमीबा है जिसकी वजह से हम लोगों को अमीबॉइसिस बीमारी होती है। यहाँ पे छोटे छोटे इसके डिवीज़न होने के बाद आ गए, फिर ये डिवीज़न होने के बाद दे अगेन ग्रो एंड डेवलप, सूडोपोडिया डेवलप होगा, इनमें एंडोप्लाज्म डेवलप होगा, फिर दे कन्वर्टेड इनटू द ट्रोफोजॉइड, ट्रोफोजॉइड के बाद इसमें प्री सिस्टिक फॉर्म, छोटे छोटे फिर से सिस्ट की फॉर्म होगी। और ये सिस्ट मिट्टी में रहते हैं, पानी में सिस्ट फॉर्म में बच जाते हैं, पानी में, मिट्टी में। और ये जो सिस्ट होता है ये जो सिस्ट होता है ये सिस्ट बॉडी में एंटर करता है। Now, after the after the amoebiasis, now we are going to study with the ascariasis. What is ascariasis? It is an infectious diseases of human intestinal tract caused by the ascaris lumbricoid, which is called as the roundworm. इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट होता है, हम लोगों को वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है। प्रेजेंस ऑफ लाइव वॉर्म्स इन फीकल मैटर, फीकल मैटर में जो लाइव वॉर्म्स होते हैं वो मिलते हैं। और पल्मोनरी डिसऑर्डर्स होता है, न्यूमोनिटीज़ होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस होता है, ईओसिनोफीलिया होता है, ईओसिनोफिल इंक्रीज़ हो जाते हैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस एस्केरियासिस? एस्केरियासिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सबसे पहले फूड एंड ड्रिंक के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक के थ्रू इसके जो एग होते हैं वो बॉडी में चले जाते हैं। और एग अंदर जाने के बाद ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और बाद में वर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, और ट्रीटमेंट जो है पिप्राज़ाइन, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ये सब लाइक पेट में कीड़े हो जाते हैं तो डॉक्टर्स मेडिसिन देता है ना। लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का लाइफ साइकिल कैसे होता है? सबसे पहले एडल्ट है, एडल्ट को हुआ है ये एस्केरियासिस, उसने उसके एग के अंदर, उसके फीकस के अंदर, उसके उसके फीकल मैटर के अंदर, उसके फीकल मैटर के अंदर, स्टूल के अंदर, उसके फीकल मैटर और स्टूल के अंदर फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। वो एग सॉइल में जाते हैं, सॉइल के थ्रू वो सॉइल में प्लांटेशन किया या कुछ भी है, वो सॉइल आपके फूड में आया, फूड कंटामिनेटेड होता है, मैन उसको स्वालो करता है, फिर वो मैन के इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर वो मैन के ब्लड में जाते हैं, ब्लड से हार्ट में जाते हैं, हार्ट से लंग्स में जाते हैं, लंग्स से ट्रकिया में जाते हैं, ट्रकिया से फैरिंग्स में जाते हैं, और फैरिंग से ईसोफेगस, अगेन इंटेस्टाइन में जाते जाते एडल्ट वॉर्म बन जाता है। और एडल्ट वॉर्म बनने के बाद फिर से ये वॉर्म अंडे देता है और अंडे हमारे लैट्रिन में जाते हैं, फीकल मैटर में जाते हैं, ठीक है। what is the prevention and control, what is how to prevent and control this how to prevent and control this ascariasis? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना, वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर यूजिंग टॉयलेट, मतलब आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। वी शुड वॉश अवर वेजिटेबल्स थरली, हम लोगों को हमारे वेजिटेबल्स भी अच्छे से वॉश करने हैं, प्रॉपर कुकिंग देखनी कि हुई है कि नहीं, अनकुक्ड फूड नहीं खाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो आता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फिलारियासिस।
that is what filariasis. What is filariasis? Filariasis is also called as the elephantiasis. Elephantiasis. Filariasis caused by the thread like worm nematodes. nematodes की वजह से होता है. नेमाटोड पैरासाइट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं from person to person via mosquito bite. Filariasis are divided into three groups: lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis and serous filariasis. ठीक है. Now what is lymphatic filariasis? lymphatic filariasis जो होता है वो लिम्फ्स में होता है. lymph node अपने बॉडी में होता है ना. lymph node अभी हमने पढ़े सर्कुलेशन चैप्टर में. सो lymph node के अंदर ये जो lymphatic filariasis होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज elephantiasis, हत्ती पाँव, वेयर द पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक लेग, आर्म, ब्रेस्ट, स्क्रॉटम, वल्वा, वजाइना, any lymph vessel, any node or particular any organ of the body that got swelling और उसमें बहुत सारी स्वेलिंग होती है और इट लुक लाइक अ लेग ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट का पैर कितना मोटा मोटा हो जाता है वैसा हो जाता है. थम, फिंगर, कुछ भी. ठीक है. लिम्फेटिक फिलारियासिस जो होता है वो एक वर्म की वजह से होता है जिसका नाम है वोकेरिया बैनक्रॉफ्टी, विच अफेक्ट द लेग, आर्म, ब्रेस्ट, स्क्रोटम एट्सेट्रा. ठीक है. ये भी क्या करता है कि लिम्फ के फ्लूइड में चला जाता है और जहाँ पे जाके स्वेलिंग करता है. Now, what is the mode of transmission of this mode of transmission of this elephantiasis और वोकेरिया बैनक्रॉफ्टी? तो ये जो वोकेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी से एक मॉस्किटो के थ्रू जिसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. ये भी मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले फर्स्ट मॉस्किटो जो होता है वो ब्लड लेता है, टेक्स अ ब्लड मील, लार्वा एंटर इनटू द स्किन. सपोज़ कोई हेल्दी पर्सन है, मॉस्किटो आके उसको काटी, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और जो लार्वा है मॉस्किटो के अंदर ऑलरेडी इसके लार्वा हैं, उसने किसी अनहेल्दी पर्सन को काट के आया है, बाइट करके आया है. तो इसने क्या किया, ये जो लार्वा होते हैं वो स्किन में एंटर करते हैं, फिर लार्वे जाके स्किन में डिवाइड एंड रीडिवाइड होके दे ब्लड यूज़ करके दे कन्वर्टेड इनटू एडल्ट्स. एडल्ट्स जो होते हैं वो शेटेड माइक्रोफिलारिया प्रोड्यूस करते हैं विच माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल. ऐसा माइक्रोफिलारिया प्रोड्यूस करते हैं जो लिम्फ में और अपने ब्लड में जाता है. नाउ दिस माइक्रोफिलारिया दे पेनिट्रेट मॉस्किटो का गट, मॉस्किटो के गट को पेनिट्रेट करते हैं एंड दे माइग्रेट टू द थोरैसिक मसल्स. थोरैसिक मसल्स में जाते हैं, पीछे के मसल्स में जाते हैं. ठीक है. फिर देन उसके बाद इनमें क्या होती है, मोल्टिंग्स होती है. मोल्टिंग्स होती है जो लार्वा होते हैं, मोल्टिंग्स का मतलब होता है दे चेंजेस देयर स्किन, दो बार अपनी स्किन चेंज करते हैं एंड दे बिकम बिगर इन साइज. नाउ दे अगेन migrate to the head of the mosquito and proboscis means mouth, and again this mosquito bites to a healthy man. मतलब यहाँ पे भी you can see the process completed into two stages, human stage and mosquito stage. पहले ये healthy human को mosquito ने काटा तो healthy human के अंदर यहाँ तक changes आए, उसके अंदर माइक्रोफिलारिया तक बना. फिर ये माइक्रोफिलारिया वापस ये अनहेल्दी को एक हेल्दी मॉस्किटो आके बाइट करता है तो मॉस्किटो के अंदर माइक्रोफिलारिया जाते हैं. ये इतने चेंजेस मॉस्किटो के अंदर होते हैं और लार्वा बनता है मॉस्किटो के अंदर और दिस लार्वा एंटर इनटू द हेल्दी पर्सन बॉडी. तो हियर मॉस्किटो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रांसमिट द डिसीज़. ओके. फिर उसके बाद what is the diagnosis and treatment for this? तो diagnosis मतलब कि जनरली डायग्नोसिस तो देख के भी पता चल जाएगा कि the person is having this elephantiasis. उसके बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ ऑफ डाइथाइल कार्बामाज़ाइन. This diethyl carbamazine which circulate twice a day for 3 weeks
and thereafter for 5 days every 6 month इफ़ेक्टिव अगेंस्ट फिलारियल वॉर्म। ये कभी ठीक नहीं होता, उतने पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार आपका जो बॉडी का ऑर्गन बढ़ गया, जो स्वेल हो गया वो हो गया, बाकी के ऑर्गन और बढ़ते बढ़ते बढ़ना नहीं चाहिए, ये हो सकता है। पर एक बार जहाँ तक की स्वेलिंग हो गई, जब आपको पता चला, उतने पे ये कंट्रोल होगा। इसके लिए भी हमको प्रिवेंशन करना चाहिए, इंसेक्ट रेपेलेंट, ओडोमॉस नेट यूज़ करना चाहिए, नेट मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें। Next disease is our typhoid. Now next and last for today's lecture is a typhoid. Typhoid is a acute infection. Acute का मतलब होता है जल्दी से जो हो जाता है, short term infection of intestine. It occurs through the bacteria Salmonella typhi. या ये जो सल्मोनेला टाइफी होता है, ये पर्सन को इन्फेक्ट करता है। इसके पास ओ एंटीजन होता है विच कंटेन लिपोपॉलीसैकेराइड, और इसका जो फ्लैजेला होता है दैट कंटेन एच एंटीजन। व्हाट इज़ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस टाइफाइड? फीवर, हाई फीवर आता है 104 फ़ारेनहाइट, जनरल नोजिया, चक्कर आता है, फटीग, थकान लगती है, हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, रोज़ कलर्ड रैश ऑन द स्किन, स्किन पे रोज़ कलर के रैशेस आ जाते हैं, लाल लाल कलर के, रेड कलर के, वाइट कोट ऑन द टंग, कफ होता है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट कम होता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, ब्रेथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, हेमरेज अकर। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इट इज़ अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज़, फूड और वाटर से आता है। बटरफ्लाई, इंसेक्ट, कॉकरोच एक फूड में से लाइक जो बैक्टीरिया होते हैं ला के दूसरे फूड को खाने आते हैं, तो उसमें वो लोग ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं होता, पुअर सैनिटाइजेशन, पुअर हाइजीन की वजह से भी होता है। इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है? एक डाइट टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट यूज़ करते हैं, और इट इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर समटाइम्स। कभी कभी अगर ज़्यादा ही टाइफाइड हो गया है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के जो अपना गॉल ब्लैडर होता है वो ज़्यादा हाईली अफेक्टेड होता है, और एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटीन इज़ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी एंटीबायोटिक्स हैं, टाइफिम 6 एंड टाइफेरिक्स that we can use. Okay, pneumonia that we will study in the next lecture. Hope you all understand this, and this is the Salmonella typhi bacteria diagram. This diagram is very important. Number of time they had asked in the exam. Okay, for 1 mark or for 2 mark, this Salmonella typhi bacteria name is for 1 mark and diagram is also for 1 mark. So you should draw the diagram very well. You should draw the diagram neat. You should draw the diagram neat and label. तो ज़रा डायग्राम देख लेना अच्छे से. Okay, hope you all understood the lecture, and if you will have any doubt, please feel free to ask me.